अच्छा, SK21 लेक्चर नंबर 10 पैथोलॉजी पेपर है फर्स्ट वाला। 48-year-old man presents with a 3-month history of progressive loss of appetite, dyspepsia and unintentional weight loss. He has a 20-year history of heavy alcohol consumption. फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको हेपेटोमेगैली और माइल्ड जॉन्डिस नज़र आ रहा है। उसके लेबॉर्ट्री पे आपको एलिवेटेड AST और ALT और GGT आपके साथ इंक्रीज्ड है। उसके साथ है मैक्रोसाइटोसिस। A liver biopsy is performed and shows swollen hepatocyte containing eosinophilic cytoplasm inclusion surrounded by neutrophils, as well as area of steatosis. Which of the following histological finding best confirms the diagnosis? तो जब भी आपके साथ AST is greater than ALT, increased GGT और मैक्रोसाइटोसिस होगा तो इसमें मेलरी डंक बॉडीज़ होंगी। मेलरी डंक बॉडीज़ ये आपके साथ क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ को सपोर्ट करता है। क्रॉनिक अल्कोहल जो यूज़ करता है उसमें AST इज़ ग्रेटर देन ALT, GGT भी इंक्रीज्ड होगा और साथ में मैक्रोसाइटोसिस भी होगी। ठीक है। 55-year-old man with a history of poorly controlled hypertension presents with abdominal distension, spider angioma and palmar erythema. Ultrasound shows nodular liver surface and splenomegaly. Acidic fluid analysis is consistent with portal hypertension. Which of the following is the most common cause of this underlying condition in adult male worldwide? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज आपके साथ अल्कोहल रिलेटेड लिवर इंजरी है। सेम सिनेरियो है। फिर है 28-year-old man with no history of BCG vaccination presents for screening after close household contact with a patient recently diagnosed with active pulmonary TB. ही इज़ एसिम्टोमेटिक। TB टेस्ट उसका हुआ, उसमें आपको 72 हार्ट्स पे 15 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन नज़र आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फाइंडिंग इन द पेशेंट? तो जब भी आपको PPD टेस्ट इसमें पॉजिटिव है और 72 हार्ट्स में 15 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन नज़र आती है, इसका मतलब है कि पेशेंट एक्सपोज हुआ है ट्यूबरक्लोसिस को। ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। तो इट इज़ ऑप्शन बी। पॉजिटिव PPD अलोन इज़ नॉट इक्वल टू एक्टिव डिजीज़। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव PPD आपके लिए एक्टिव डिजीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव PPD हो। उसके साथ यू नीड टू कंफर्म इट विद चेस्ट एक्सरे और आपने सिम्टम्स को भी देखना है। 32-year-old woman developed fever, chills and leukocytosis after a complicated appendectomy. The inflammatory response lead to the release of neutrophils from bone marrow into circulation. ठीक है। फिर इसके बाद है which of the following cytokines play the most important role in mobilizing these leukocytes during acute inflammation? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ है इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फ़ा। फीवर की बात जब भी आ जाए तो आपने इंटरल्यूकिन 1 लिखना है। स्टार्ट में आपको कहा था कि फीवर है, चिल्स है, ल्यूकोसाइटोसिस है, अपेंडेक्टमी हो रही है, तो इसमें आपने डायरेक्टली इंटरल्यूकिन 1 चूज़ करना है और उसके साथ TNF अल्फ़ा है। 42-year-old woman presents with slowly enlarging painless mass on the hard palate that has been present for several months. She denies weight loss, dysphagia or bleeding. Physical examination reveals a firm, non-tender, well circumscribed mass. बायोप्सी पे आपको बायोप्सी demonstrate a mixture of epithelial and myoepithelial cells within the within chondromaxil stroma. Which of the following is the most likely diagnosis? तो आपको जब भी ये कहते हैं कि आपको एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स विद इन कॉन्ड्रोमैक्सोमल स्ट्रोमा नज़र आ रही है तो इसमें आपने प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की तरफ जाना है। और भी पॉइंट्स है कि पेनलेस मास है हार्ड पैलेट पे और उसको कोई वेट लॉस, डिस्फेजिया, ब्लीडिंग वगैरह नहीं है और ये आपके साथ जो है एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स विद इन अकॉन्ड्रोमैक्सोमल स्ट्रोमा, इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर में क्या लिखना होगा? आपने लिखना होगा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। अच्छा, इसके बाद है 24-year-old woman is started on deoxycycline for inflammatory acne. She is counseled to avoid dairy products around the time of dosing to
to maximize absorption. This drug inhibits bacterial protein synthesis by binding to 30S ribosomal subunit. Which of the following step is in translation is most directly blocked? तो इसमें आपसे एक्ने के लिए डीऑक्सीसाइक्लिन दिया गया है जो कि राइबोसोमल 30S सब यूनिट पे बाइंड होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसलेशन इज़ मोस्ट डायरेक्टली, तो ये जब इस पे बाइंड होता है कौन सा स्टेप ये आपके साथ ब्लॉक करता है। तो और ऑप्शंस देखते हैं, ये अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए टू ए साइट, ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है। 12-year-old boy presents with fasting hypoglycemia, hepatomegaly, elevated triglycerides, and normal carnitine levels. The defect is most likely in which enzyme? तो ये है carnitine acyl transferase 1। जो 2 है उसमें आपके साथ कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इट ब्लॉक्स, ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की बात करें कि ये फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगैली, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड कॉज करेगा। रिड्यूस्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है। नॉर्मल कार्निटीन होगा तो उसमें कार्निटीन डिफिशिएंसी नहीं लिखनी है आपने। अगर आपने कार्निटीन जो ये है एसाइल ट्रांसफरेज 2, उसमें आपके साथ क्या होता है, देयर आर कार्डिक एंड सॉरी स्केलेटल मसल डैमेज होता है उसमें। ठीक है, कार्डिक और स्केलेटल मसल का डैमेज होता है, नॉट न्यूरोलॉजिकल। तो CPT2 में आपके साथ कार्डिक और स्केलेटल मसल का डैमेज भी होगा। 36-year-old man with suspected autoimmune hepatitis is scheduled for a diagnostic percutaneous liver biopsy. The procedure is planned with the patient in the supine position and the right arm raised above the head. To minimize the risk of injuring the lung or major vessels, the needle should be inserted at the safest anatomical location. Which of the following is correct? तो आपने इस काइंड ऑफ सिचुएशन में जो नीडल है उसको कहाँ पे आपने पास करवाना है। ये 9th इंटरकॉस्टल स्पेस होगा, मिड एक्सिलरी लाइन होगा और जस्ट अबव द 10th रिब। 58-year-old smoker presents with a chronic cough and recent onset of hemoptysis. कफ है, हेमोप्टिसिस है। CT chest shows spiculated mass, chest CT पे आपको spiculated mass in the upper lobe of the lung नज़र आ रहा है। Examination of the lesion shows marked cellular atypia or irregular nuclei shapes and increased mitotic figures. In the pathogenesis of malignant tumor, which of the following event typically represents the earliest step? तो इसमें earliest step को कौन represent करवा रहा है, जिसमें आपके साथ जो है एक spiculated mass है upper lobe of the lung में और उसमें आपको मार्क्ड सेलुलर एटीपिया एंड इरेगुलर न्यूक्लियाई शेप्स नज़र आ रहे हैं और इंक्रीज माइटोटिक फिगर्स, तो ये आपको मेटाप्लेजिया में नज़र आते हैं। ठीक है, किडनी बायोप्सी फ्रॉम अ पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम शोज एपिथेलियल सेल्स विद प्रोमिनेंट बेसल एनफोल्डिंग्स, numerous elongated mitochondrial and abundant sodium potassium ATPase activity. These features are more consistent with which of the following structure specialization that facilitate transport? तो इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके साथ ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करवाएगा? दैट विल बी योर सोडियम पोटाशियम पम्प, ऑप्शन नंबर E। 38-year-old man with HIV presents with subacute headache and confusion. ब्रेन MRI पे आपको मल्टीपल बेसल गैंग्लिया लीजन विद जेलेटेनियस अपीयरेंस नज़र आ रहा है। स्टेनिंग ऑफ CSF, इंडियन इंक नॉट मेंशन, रिवील्ड राउंड यीस्ट सेल्स। अच्छा, स्टेनिंग करते हो CSF के, उस पर आपको राउंड यीस्ट सेल्स विद थिक कैप्सूल हेलो अपीयरेंस नज़र आएगा। तो ये आपके साथ कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये आपके साथ है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप इसको एम्फोटेरिसिन B से आपने उसको ट्रीट करना है प्लस फ्लूसाइटोसिन इंडक्शन करवानी है, देन फ्लूकोनाजोल कंसोलिडेशन करवानी है। 52-year-old man with cystic fibrosis developed pneumonia. Gram-negative rods are isolated from his sputum. The organism produced blue-green pigment and has a fruity odor. Which of the following virulence factors contribute to its ability to cause sepsis and shock? तो ये सूडोमोनास की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ
जो है सबसे और शॉक एंडोटॉक्सिन करवाता है, ठीक है। 14-year-old boy presents with persistent low-grade fever and localized tenderness over his tibia. MRI पे आपको lytic lesion with surrounding sclerosis and metaphysis. बायोप्सी पे आपको evidence of suppurative inflammation. फिर इसमें which of the following is the most likely diagnosed, तो ये है pyogenic osteomyelitis. Serum protein electrophoresis from a patient with recurrent infection reveal a sharp monoclonal spike in the gamma region. मोनोक्लोनल स्पाइक की बात आ गई तो डायरेक्टली आपके माइंड में मल्टीपल माइलोमा आना चाहिए. इम्यूनो फिक्सेशन confirms the presence of IgG kappa monoclonal protein. Which of the following लेबोरेटरी टेक्निक was most likely used to confirm. तो इसको हम किस चीज़ से कंफर्म करते हैं, हम इसको इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इसको कंफर्म करते हैं, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस से. 43-year-old man presents with chronic cough, night sweats and weight loss. Sputum smear is positive for acid-fast bacilli. The organism pathogenicity is primarily due to the host immune response rather than the direct toxin production. Which of the following immune mechanism plays the most important role in controlling this infection? तो ये आपसे कह रहे हैं कि एक पेशेंट है, क्रॉनिक कफ, नाइट स्वेट, वेट लॉस है, उसको स्प्यूटम स्पेयर पे एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है. इसकी पैथोजेनेसिस में ये जो है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को रादर देन द डायरेक्ट टॉक्सिन प्रोडक्शन, ये इस द ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिसिटी इज प्राइमरी ड्यू टू, इसकी पैथोजेनिसिटी इसलिए है कि ये होस्ट ड्यू टू द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स रादर देन डायरेक्ट टॉक्सिन प्रोडक्शन. तो इसमें कौन सा इम्यून मैकेनिज्म रोल प्ले करेगा, दैट विल बी योर, अच्छा ये होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विद एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इंट्रासेलुलर, ठीक है. अच्छा फिर है 27-year-old man presents to the emergency department with sudden onset palpitation while playing football. His heart rate is 190, BP is 118/78, ECG shows a narrow complex tachycardia. He has no structural heart disease. Which of the following is the most appropriate initial pharmacological intervention? तो इसका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, टेकिकार्डिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो इसमें आप एडिनोसिन देते हो, ठीक है. 6-year-old boy with hemophilia A presents with hemarthrosis. Which of the following blood product is most appropriate for acute replacement therapy? तो हेमोफीलिया का पेशेंट है, हेमार्थ्रोसिस हो रही है, उसमें आपने क्रायोप्रेसिपिटेट देना होता है, ठीक है. क्रायोप्रेसिपिटेट में आपके साथ फाइब्रिनोजन फैक्टर 8 1 विली ब्रांड फैक्टर होता है, और हेमोफीलिया ए में आपके साथ it uses factor 8 concentrate. Cryo is acceptable where concentrate is unavailable. FFP में आपके साथ सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट ये आपके साथ लेस कंसनट्रेटेड होता है फॉर फैक्टर 8. A 74-year-old woman with progressive memory loss and confusion is found to have widespread cortical atrophy. Brain autopsy shows intracellular neurofibrillary tangles. तो ये इसका कीवर्ड है, composed of hyperphosphorylated tau protein. ये भी इसका बहुत कीवर्ड है. न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और टाउ प्रोटीन आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ में मिलते हैं. 68-year-old newly diagnosed prostate adenocarcinoma presents with back pain. MRI पे आपको metastasis to the lumbar vertebrae नज़र आ रही है. The spread of this cancer to the vertebral column most likely occurred by which of the following venous system? तो इसका स्प्रेड कौन से वीनस सिस्टम से होता है? बैट्सन वीनस प्लेक्सिस से होता है, बैट्सन वीनस प्लेक्सिस. ये जो प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा है ये वर्टेब्रा में जाता है थ्रू द बैट्सन वीनस प्लेक्सिस. 50-year-old woman with COPD presents with worsening shortness of breath. Arterial blood gas shows pH 7.28 है, एसिडोसिस है, और आपके साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है. अब इस ऑलमोस्ट नॉर्मल, तो ये आपके साथ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस. आप इसमें देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन से में है, ऑप्शन ए में है बस, और ऑप्शन सी में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, नॉट मेटाबॉलिक. पीएच कम है और PCO2 आपके साथ ज़्यादा है, so that is your respiratory acidosis with metabolic compensation. क्योंकि ये आपके साथ HCO3 भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो उसमें कंपनसेशन मेटाबॉलिक कंपनसेशन हुई है.
42-year-old woman presents with muscle cramps and paresthesia. Lab shows serum calcium 7.2 and phosphate within the normal range. Which of the following investigation is most appropriate to next establish the diagnosis? तो इसमें हम करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, ठीक है। 65-year-old man presents with fever, headache and confusion for 1 day. CSF पे आपको elevated opening pressure, neutrophilic pleocytosis, low glucose और high protein नज़र आ रहा है। ग्राम स्टेन पे आपको ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई, तो ये इसके लिए बहुत टिपिकल है। ये लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई आपको स्ट्रेप निमोनिया में नज़र आता है। अगर आपने इसका स्केची वीडियो देखा है तो इसमें वो बंदा जो होता है उसने एक लैंसेट शेप का एक तलवार हाथ में वो जो घोड़े पे बैठा होता है तो लैंसेट शेप उसके साथ जो है एक तलवार होती है, तो दैट इज़ इन strep pneumonia. Healthy 22-year-old man suddenly stands up after prolonged lying down and experiences dizziness. His blood pressure falls to 90. Which of the following hemodynamic changes is most likely occurring? तो 22-year-old है, suddenly वो stand up हुआ है from prolonged lying down, तो इसमें आपके साथ क्या होगा? इसमें आपके साथ decreased heart rate होगा और इसमें आपके साथ एक मिनट, इसमें आपके साथ होगा इंक्रीज्ड हार्ट रेट और डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सही है। तो ब्लड प्रेशर 90/50 है। सडनली जब एक बंदा आपके साथ स्टैंड अप होता है तो फ्रॉम लाइंग डाउन, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, उसकी वजह से हार्ट रेट उसका ज़्यादा हो जाता है। 9-year-old boy presents with paler jaundice and splenomegaly. पेरिफेरल स्मीयर पे आपको स्पीरोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर सिमिलर सिम्टम्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डिफेक्ट इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन? तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको स्पेक्ट्रिन का डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। और बैंड 3 एनकायरिन का भी डिफेक्ट होता है। स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, बैंड 3 और प्रोटीन 4.2। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। 10-year-old boy develops facial puffiness and cola color urine 2 weeks after impetigo. Renal biopsy पे आपको large hypercellular glomeruli with subepithelial humps नज़र आ रहे हैं। Which of the following types of hypersensitivity reaction best explain this condition? तो ये आपके साथ है subepithelial humps glomeruli, ये इसमें टाइप 3 hypersensitivity reaction है, क्योंकि ये आपके साथ फेशियल पफिनेस, कोला कलर यूरिन, इन लार्ज ग्लोमेरुलाई है, सब एपिथेलियल हम्प्स हैं, तो ये आपको PSGN में मिलते हैं, ठीक है। इन एक्यूट रूमेटिक फीवर द इनिशियल हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज इन द मायोकार्डियम इज़, तो रूमेटिक फीवर में आपको नेगरी बॉडीज या ये है फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन, ठीक है, बिल्कुल फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन। Researcher is studying the role of innate immune cells in the viral infection. Which of the following cell types is most likely responsible for killing virus-infected cells before the activation of the adaptive immune system? तो आपके साथ immune cells, innate immune cells पे एक स्टडी हो रही है और उसका रोल देखा जा रहा है। तो कौन से सेल टाइप्स जो हैं आपके साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर killing virus infected cells? They are natural killer cells. Patient with ATP and atypical pneumonia is found to have organism that lacks a cell wall and not is visible on gram staining. तो ये माइकोप्लाज्मा हो गया जिसमें आपको सेल वॉल नहीं मिलता। माइकोप्लाज्मा में नो सेल वॉल होता है, ये आपके साथ जो है एटिपिकल निमोनिया कॉज करवाता है। इसको आप ट्रीट करते हो मैक्रोलाइड और टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन से। 25-year-old man presents with recurrent episodes of wheezing, shortness of breath and pruritic skin rash after exposure to dust in his workplace. Skin prick test with dust mite antigen produces a wheal and flare reaction within 15 minutes. Hypersensitivity reaction है, anaphylactic reaction है, which is type 1 hypersensitivity. Which of the following
fungi is intrinsically resistant to echinocandins. Echinocandins के लिए जो resistant होता है that is Cryptococcus neoformans. 42-year-old man presents with multiple film nodules over the extensor tender of his hands and Achilles tendon. Lipid profile पे आपको elevated LDL और VLDL नज़र आ रहा है. Which type of hyperlipoproteinemia does this patient have? That is type 2B. ठीक है, elevated LDL और VLDL नज़र आए तो that is type 2B. 34-year-old man with schizophrenia developed muscle rigidity tremors. इसकी जो ये क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड गो थ्रू इट. ठीक है. 34-year-old man with schizophrenia developed muscle rigidity tremors and bradykinesia after being started on a new medication. Neurological examination revealed cogwheel rigidity. Which of the following drug is most likely responsible? तो cogwheel rigidity आपको हेलोपेरिडोल की वजह से नज़र आती है. ठीक है. शिजोफ्रीनिया का पेशेंट है, उसको मसल रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनीसिया वगैरह है. ठीक है. जब उसने एक न्यू मेडिकेशन स्टार्ट किया तो ये है हेलोपेरिडोल. 39-year-old man presents with severe epigastric pain and chronic diarrhea. Endoscopy पे आपको multiple duodenal ulcers and fasting gastrin level are markedly elevated. Which of the following would most likely increased after pentagastrin administration? तो pentagastrin जब आप एडमिनिस्टर करते हो तो उससे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी. Microbiology student performs Zeal-Nelson staining for acid-fast bacilli but forgets to apply the acid-alcohol decolorizer step. What will be the appearance of the bacteria in the background on microscopy? So that will be acid-fast bacilli is red and non-acid-fast bacilli is blue. All bacteria red, all blue. acid-fast bacilli blue है और non-acid-fast red है. तो इसमें सारे के सारे बैक्टीरियाज आपके साथ रेड हो जाएंगे. ठीक है, ये आप याद रखो. प्रेग्नेंट वुमेन is found to have a germline mutation in the SDH succinate dehydrogenase gene associated with familial paragangliomas. What is the probability that her child will inherit mutation? So that is your 50%. ठीक है, 50%. which is autosomal dominant, इसमें 50% आपके साथ चांसेस होंगे. ये दोनों MCQs बिल्कुल बेतुके MCQs थे. बस पार्ट 1 है तो आपने इनको बस रट्टा मारना है और क्या कर सकते हो. 28-year-old woman presents with fatigue and jaundice. She has a history of systemic lupus erythrocyte. लैब रिजल्ट पे आपको एनीमिया और एलिवेटेड lactate dehydrogenase and indirect bilirubin नज़र आ रहा है. Which of the following investigation would confirm the diagnosis of anemia in SLE? तो anemia in SLE को कौन डिटेक्ट करवाता है? That is your direct antiglobulin Coombs test. 56-year-old man develops fever, chills, back pain and hemoglobinuria 30 minutes after receiving a transfusion of packed RBC. Direct antiglobulin Coombs test is positive. Which of the following is the most likely mechanism? तो इसका मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म जो आपके साथ है दैट इज़ IgM कम्प्लीमेंट मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोनर RBC. अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनिशियल स्टेप इन एग्जीक्यूशन ऑफ एपोप्टोसिस. तो एग्जीक्यूशन ऑफ एपोप्टोसिस का जो स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. 27-year-old athlete completes marathon on a hot summer day. He presents with muscle cramps, lightheadedness. Laboratory studies may decrease serum sodium and chloride. Which electrolyte imbalance is most likely? तो एथलीट है, समर डे पे मैराथन उसने कंप्लीट किया, तो इसका जो इसमें डेफिशिएंट होगा दैट विल बी सोडियम विच इज़ हाइपोनेट्रीमिया. 68-year-old man presents 80 hours after onset of chest pain. Troponin level उसका normalized है. LDH is आइसोजाइम एनालिसिस उसका परफॉर्म हुआ. तो कौन सा आइसोजाइम पैटर्न आपको एक्सपेक्ट हो रहा है इस स्टेज में? तो LDH1 इज़ ग्रेटर देन LDH2. MI के बाद LDH1 राइज होता है और ये आपके साथ एक्सीड कर जाता है LDH2 से.
अराउंड 48 to 72 आवर्स। 80 आवर्स पे आपके साथ LDH1 प्रीडोमिनेट हो जाता है। 61-year-old retired shipyard worker presents with progressive dyspnea. Chest X-ray shows pleural based mass encasing the lung. Histopathology reveals tumor cells positive for calretinine and cytokeratin 5/6. Which of the following is the most likely diagnosis? तो इसमें this is malignant mesothelioma। ठीक है, शिपयार्ड की हिस्ट्री है एस्बेस्टोसिस में आपके साथ होता है malignant mesothelioma। A 59-year-old man is found to have 3/3 centimeter enhancing mass in the right kidney. On imaging, hemoglobin is elevated at 17 gram per deciliter. The tumor cells are producing erythropoietin. Which of the following is the most likely diagnosis? तो 3/3 centimeter mass है राइट किडनी पे, हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और क्योंकि मैन है और इसमें आपके साथ ट्यूमर सेल्स एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा में आपको पोलीगोनल क्लियर सेल्स फिल्ड विद एक्यूमुलेटेड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आएंगे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम PCT और इन्वेट करता है रीनल वेन को। ये आपके साथ वेरिकोसील भी डेवलप कर सकता है अगर लेफ़्ट साइड पे हो। इसमें फ्लैंक पेन, पैल्पेबल मास और हेमेचूरिया आपको नज़र आएगी। और टोबैको स्मोकिंग ओबेसिटी के साथ इंक्रीज़ होता है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। PTH-RP, एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन, ACTH और रेनिन के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर सेल जो है इसका मोस्ट कॉमन सब टाइप है विच इज़ एसोसिएटेड विद जीन डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 3। ठीक है, जिसमें स्पोरेडिक और इनहेरिटेंट सच एज von Hippel-Lindau syndrome आता है। 72-year-old man presents with polyuria, polydipsia and confusion. Lab values में ग्लूकोज 43 है, सोडियम 155, bicarb 25, potassium 4. Which of the following is the most likely diagnosis? इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपके साथ है हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, ग्लूकोज 43 मिलीमोल है, सोडियम 155 है, बाइकार्ब 25, पोटेशियम 4 है। तो दिस इज़ हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट HHS। ठीक है, HHS आप देख लो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DK एंड HHS। ठीक है, न्यू बॉर्न ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया भी है। न्यू बॉर्न डेवलप्स ट्रेमर एंड सीजर्स 2 hours after birth. The mother had poorly controlled diabetes during pregnancy and received high dose insulin therapy. Which of the following best explains the infant hypoglycemia? तो infant hypoglycemia को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? दैट इज़ fetal hyperinsulinemia. 29-year-old woman developed postpartum hemorrhage after prolonged labor. Laboratory results में आपको prolonged PTA, PTT, low fibrinogen और शिस्टोसाइट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ऑन द पेरिफेरल स्पील along with न्यूट्रोफिलिया। तो ये आपके साथ हेमोलिसिस भी हुई है और ये आपके साथ इसमें सारी की सारी चीज़ें प्रोलॉन्ग है, तो दिस बिकम्स DIC। RH negative woman delivers RH positive infant. She is given intramuscular injection postpartum to prevent hemolytic disease in subsequent pregnancy. Which of the following best describe this mechanism? तो इसमें आपके साथ opsonization of fetal RBC in the maternal circulation, ये करेक्ट ऑप्शन है। 28-year-old man with no prior BCG vaccination undergoes TB test with purified protein derivatives in duration 14 millimeter है at 48 hours। तो इसमें भी TB पॉजिटिव है। TB आपके साथ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। 46-year-old woman with rheumatoid arthritis is found to have HLA-DR4। अच्छा, HLA-DR4 आपके साथ which of the following DR4 rheumatoid arthritis में होता है? So the following best describe the function of gene product। तो gene product का best explanation है कि presentation of CD4 of antigen to CD4 T cells। ठीक है, तो इसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं CD4 T cells को। फिर है 31-year-old hiker develops greasy foul smelling diarrhea after drinking untreated mountain stream water। स्टोन माइक्रोस्कोपी पे आपको पियर शेप ट्रोपोजाइट्स with 2 nuclei नज़र आ रहे हैं,
तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज जियार्डिया लिम्बिया। 57-year-old man with chronic COPD presents with drowsiness and confusion। ABGs पे pH acidosis है, respiratory acidosis है, तो this is uncompensated respiratory acidosis। 42-year-old woman presents with generalized edema, urine analysis पे 4+ proteinuria है, which initial bedside test could have detected protein in her urine। तो initial best test जो उसके प्रोटीन को डिटेक्ट करवाता है दैट इज़ यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। 48-year-old मैन प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव ब्लरी विजन, हैंड्स enlarged है, कोर्स फेशियल फीचर्स है, फॉर पास्ट 5 years IGF-1 की डिफिशेंसी है। ठीक है, ये एक्रोमेगैली में आपको मिलती है। पिट्यूटरी मास भी नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ एक्रोमेगैली। 35-year-old मैन वर्क्स नाइट शिफ्ट एंड कंप्लेंट ऑफ डिफ़िकल्टी है, उसको रेगुलर स्लीप स्केजुअल में। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, कौन सा ऐसा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दैट इज़ योर सुप्राकियाज्मेटिक, जो सर्केडियम रिदम को कंट्रोल करता है। 64-year-old मैन इज़ डायग्नोज्ड विद क्रॉनिक CML। साइटोजेनेटिक एनालिसिस आपके साथ रिवील करता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। तो CML में आपके साथ 922 ट्रांसलोकेशन होती है। BCR ABL फ्यूजन भी होता है साथ में। 64 ईयर्स पे मीडियन एज है इसका, और मैसिव स्प्लीनोमेगेली बेसोफिलिया आपको नज़र आएगा। लो ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज नज़र आएगा। लैब वर्सेस हाई लैब इन ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, तो ल्यूकोमॉइड रिएक्शन में हाई लैब स्कोर होता है और CML में लो लैब स्कोर होगा। बोन मैरो बायोप्सी 71-year-old, उसमें आपको हाइपर सेलुलरिटी डिक्रीज लेस देन 15% ब्लास्ट एंड डिस्प्लेजिया इन मल्टीपल सेल लाइन्स। तो 71-year-old है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि 71-year-old होगा तो आपने CLL को माइंड में रखना है। CLL ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि हाइपर सेलुलरिटी है और लेस देन 15% ब्लास्ट, ये आपको प्लास्टिक यानी सॉरी ये आपको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में मिलेगा। ठीक है, तो CLL ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह माइलोडिस्प्लास्टिक है, तो उसमें आपके साथ हाइपर सेलुलरिटी लेस देन 15% ब्लास्ट एंड डिस्प्लेजिया आपको नज़र आएगी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स in the small intestine with microvilli secretary granule are responsible for releasing lysozymes and defensins। तो इसमें कौन से टाइप के सेल्स इन्वॉल्व है? दैट आर योर पेनेट सेल्स। 6-month-old infant presents with hypoglycemia, lactic acidosis, hypercalcemia and hepatomegaly। एंजाइम ऐसे पे आपको डिफिशिएंसी ऑफ G6 फॉस्फेट की नज़र आ रही है, तो G6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके साथ पॉनगिरकी में डेफिशिएंट होता है। फिर है 64-year-old मैन विद 40 स्मोकिंग हिस्ट्री प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर कंसिस्टेंट विद एम्फाइसीमा। हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेप्टा एंड डिक्रीज परफ्यूजन टू सम एल्वियोलाई। Which of the following best describe this physiological consequence of this change? तो इसमें आपके साथ इंक्रीज्ड जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होगा वो आपके साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्मोकिंग हिस्ट्री है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेप्टा एंड डिक्रीज परफ्यूजन टू सम एल्वियोलाई। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस विल इंक्रीज। अच्छा, ये AA ग्रेडियंट इन चीज़ों में इंक्रीज होता है और इन चीज़ों में आपके साथ डिक्रीज होगा। फाइब्रोसिस V/Q राइट टू लेफ्ट शंट, AA ग्रेडियंट नॉर्मल वैल्यू 0 to 10 और AA रेशो नॉर्मल है 0.8, तो इनमें AA ग्रेडियंट आपको नज़र आएगा और इंक्रीज हुआ होगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपके साथ V/Q लेस देन नॉर्मल होता है
ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन इसमें कंपोजिशन ऑफ सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड अप्रोचेस, मिक्स्ड वीनस ब्लड और परपल्मोनरी एम्बोलिज्म में वी बाई क्यू इनफाइनाइट होता है और एल्वियोलर एयर अप्रोचेस द इंस्पायर्ड एयर इज इक्वल टू द इंस्पायर्ड एयर. Perhaps 55-year-old man with primary hyperaldosteronism presents with hypertension and metabolic alkalosis. Which of the following changes is most likely in his laboratory values? तो changes कौन से होंगे laboratory values में कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा हुआ होगा. Couple first child died at 18 months for suspected genetic disorder. Parent अभी एक another pregnancy को plan कर रहे हैं and want to know if the next child may be affected. The mother had history of recurrent miscarriages. Which of the following is the most appropriate initial test to detect chromosomal abnormality? तो वो आपके साथ है karyotyping. फिर है a 29-year-old woman presents with photosensitive rash, joint pain and fatigue. Which of the following is the most sensitive for this test? तो इसके लिए most sensitive है anti-Smith antibody. SLE की बात कर रहे हैं, उसके लिए most sensitive है Smith. 42-year-old fisherman presents with megaloblastic anemia. Peripheral smear पे आपको मैक्रोओवेलोसाइट्स और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे हैं. तो स्टूल एग्जामिनेशन पे इट रिवील्स इन्फेक्शन विद डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम. तो डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम में B12 की डिफिशेंसी होती है, ये आपने याद रखना है. B7 जो है इट बाइंड्स एवेडिन इन द एग और कैरियर ऑफ 1 कार्बन है. B7 लिवर मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है. 1 कार्बन ट्रांसफ़र में फोलेट है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी फोलेट करवाता है. विटामिन ए डिफिशिएंसी में अर्ली साइन नाइट ब्लाइंडनेस होगा और टॉक्सिसिटी में स्केली डर्मेटाइटिस इज ग्रेटर देन जॉन्डिस. Optic neuritis में B12 is greater than B6. Peripheral neuritis में B1 is greater than 6 than 12. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में थायमीन होता है, प्रोटीन में राइबोफ्लेविन होता है, लिपिड में बायोटिन. 35-year-old man presents with chronic diarrhea and malabsorption. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे आपको एनीमिया नज़र आ रहा है, HB 7.5 है, elevated MCV and pancytopenia. Which of the following is the most likely cause? तो मोस्ट लाइकली कॉज है मेगेलोप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि एलिवेटेड MCV आपको नज़र आ रहा है, पैनसाइटोपिनिया भी है. 62-year-old man presents with easy bruising and prolonged bleeding after dental extraction. A laboratory test shows prolonged PT and APTT with normal platelet count. Which of the following coagulation factor require vitamin K for synthesis? तो विटामिन K के लिए 2, 7, 9 और 10 फैक्टर्स चाहिए. 32-year-old man underwent gamma irradiation for treatment of retroperitoneal tumor. 6 महीने बाद ही is elevated for infertility, जिसमें आपको small testes और normal secondary sexual characteristics नज़र आ रहे हैं. लैब स्टडीज़ पे नॉर्मल सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है और इसमें एडिशनल फाइंडिंग आपको क्या नज़र आएगी? दैट विल बी योर नॉर्मल और डिक्रीज्ड इनहिबिन लेवल्स. ठीक है, तो नॉर्मल या डिक्रीज्ड होगा इनहिबिन. 71-year-old वुमेन है, उसको प्रोग्रेसिव बोन पेन और हियरिंग लॉस है. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे एलिवेटेड ALP नज़र आ रहा है, कैल्शियम और फॉस्फोरस नॉर्मल है. हिस्टोलॉजी ऑफ द अफेक्टेड बोन में आपको डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ विद मोज़ेक पैटर्न ऑफ लेमुलर बोन. तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? दैट इज़ योर पैजेट डिजीज़ ऑफ द बोन. अच्छा, a child with genetic disorder involving increased apositional bone growth is most likely to have which of the following? तो जब भी increased apositional bone growth आपको नज़र आई, उसमें आपने increased bone width लिखना है. 56-year-old woman underwent total abdominal hysterectomy. उसको bilateral salpingo-oophorectomy for high-grade serous ovarian carcinoma है. She is in remission and follows up every 6 months. और ऑन्कोलॉजिस्ट ऑर्डर ट्यूमर मार्कर टेस्टिंग टू मॉनिटर फॉर रिकरेंस. इसके लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज़फुल है? तो ट्यूमर मार्कर ओवेरियन के लिए CA-125 होता है. 34-year-old वुमेन है, उसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, अंडरगोज जेनेटिक काउंसलिंग. टेस्टिंग में आपको म्यूटेशन
that increases her risk for both cancers and involved in DNA repair mechanism. Which of the following genes is most likely mutated? So that is your BRCA1, क्योंकि ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन में भी BRCA1 आपके साथ म्यूटेट हो सकता है। रिसर्चर स्टडी कर रहा है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंजाइम को, उसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इंटरमीडिएट डेंसिटी lipoprotein to low density lipoprotein in the bloodstream, वो उसको नोट करता है। another that mobilize stored TGs2 from adipocytes and other that esterifies cholesterol for storage। तो इसमें कौन सा जो है आपके साथ करेक्ट मैच है? तो ये एलकैट और HSL और LPL, तो LPL, HSL और एलकैट, दिस इज़ द करेक्ट मैकेनिज्म। एलकैट को एंड में लिखना है, LPL को आपने पहले लिखना है, बीच में आप जो है PS और कैट, PS कैट। LPL को पहले लिखो, HSL को बाद में लिखो, फिर एलकैट को। 52-year-old man with uncontrolled diabetes presents with fever, facial pain and black necrotic tissue on nasal mucosa, histopathology पे एक lesion which shows broad non-septate hyphae। तो non-septate जब भी आ गया तो it becomes mucor, septate में aspergillus होगा। organism की बात कर रहे हैं तो mucor है, that is the correct option। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आपने रीड करना है यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। यहाँ पे भी फिर है 67-year-old man develops fever, productive cough, shortness of breath on day 6 of mechanical ventilation in the ICU। chest x-ray पे आपको न्यू राइट लोअर लोब इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहा है। which of the following pathogen is most likely responsible? तो इसमें Pseudomonas aeruginosa is responsible। During an inflammatory response, neutrophil adhere to the vascular endothelium before migrating into tissue। which of the following sequence? तो ये ऑलरेडी बताया है, MRAT, margination, enrolling, adhesion, transmigration। फिर है ये अगर आपने जानने हैं तो मार्जिनेशन किसे कहते हैं? जब आपके साथ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, RBC जो है सेंट्रल पोजीशन एक्वायर कर लेता है और न्यूट्रोफिल पेरिफेरल और मार्जिनल पोजीशन एक्वायर करते हैं। रोलिंग में ल्यूकोसाइड्स रोल कर जाते हैं अलोंग द एंडोथेलियम। एडहेजन में ल्यूकोसाइड जो है एंडोथेलियम के साथ स्टिक हो जाते हैं। WBC एंडोथेलियम के साथ आईकैम के थ्रू स्टिक होते हैं और बैक्टीरिया के साथ ऑप्सोनिन के थ्रू अटैच होते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन में माइग्रेशन होती है न्यूट्रोफिल की along the smooth epithelium of the blood vessel। माइग्रेशन में ल्यूकोसाइड्स मूव करता है टूवर्ड द साइड ऑफ इंजरी। फैगोसाइटोसिस में डीग्रेनुलेशन और किलिंग में न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज जो है ये रिकग्नाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म को जिनके साथ FC कोट होगा ऑफ IgG एंड C3b कंपोनेंट और उसके साथ अटैच होके उनको किल कर देते हैं। फिर है a patient develops septic shock, examination reveals hypotension, tachycardia, warm extremities। which of the following mechanism best explain the increased permeability seen in this condition? तो ये है एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन जो कि मीडिएट होती है बाय हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन। अच्छा, 70-year-old woman develops pneumonia 5 days after hospital admission। The causative organism is isolated for a respiratory sample compared to community acquired strains। hospital acquired pneumonia pathogens most likely exhibit which of the following characteristic? तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। patient with severe hemorrhage following RTA develops profound hypotension। Initial physiological compensation includes vasoconstriction of arterioles in non-essential vascular beds। तो कौन सा मीडिएटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोकंस्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स? तो हिस्टामिन भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और आपके साथ एंडोथेलिन भी करवाता है, लेकिन एंडोथेलिन इज़ ग्रेटर देन हिस्टामिन, हिस्टामिन वेजोडाइलेशन करवाता है।
एंडोथेलिन आपके साथ वेसोकंस्ट्रक्शन करवाएगा. एन आइसोलेटेड सेगमेंट ऑफ skeletal muscle is placed in perfusion chamber and vascular smooth muscle is supplying the artery contracts when stretched. This myogenic response is triggered by which of the following stimuli? तो इसको कौन स्टिमुलेट करवाता है आपके साथ? increased stretch tension of the vascular wall. 25-year-old man sustained multiple deep laceration to the lower limb after motorcycle accidents. Shortly after resuscitation, he developed hypotension and tachycardia with cold extremities. Which of the following best explain his shock? तो उसके शॉक को बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? दैट इज़ योर लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड पेरिफेरल पूलिंग फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. तो इसमें ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाता है, पेरिफेरल पूलिंग फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. 38-year-old man from South Asia presents with inability to open his mouth fully along the pale mucosa and loss of tongue papillae. Which of the following is the most likely diagnosis? साउथ एशिया से है, माउथ को ओपन नहीं कर पा रहा, पेल म्यूकोजा है, लॉस ऑफ टंग पेपिलाए है. तो लॉस ऑफ टंग पेपिलाए आपको किस चीज़ में मिलेंगी? ये आपको ओरल सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस में मिलती है. अगर मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन का पूछे तो ल्यूकोप्लेकिया. एल फॉर लीजन, एल फॉर ल्यूकोप्लेकिया. अगर मोस्ट लीथल का पूछे तो दैट इज़ एरिथ्रोप्लेकिया. अगर मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन का पूछे तो दैट इज़ फाइब्रोसिस. कंडीशन में फाइब्रोसिस. अगर मोस्ट लीथल प्री मेलिग्नेंट कंडीशन का पूछे लीथल में लाइकन प्लेनस. Autopsy of a patient who died from cirrhosis reveals golden brown pigment deposition within the pancreatic acinar cells. Which of the following best describe this finding? तो जब भी आपको golden brown pigment मिलेगा in the pancreatic acinar cells, that is hemosiderosis. 42-year-old woman is diagnosed with thyroid tumor. Histopathology shows with overlapping nuclei containing finely dispersed chromatin orphan. इन nuclei आपको पेपिलरी कार्सिनोमा में मिलता है. एंड न्यूमरस समोमा बॉडीज़, तो ये टिपिकल ऑर्फन एनीआई और समोमा बॉडीज़ आपको पेपिलरी कार्सिनोमा में मिलते हैं. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती है. स्लो ग्रोइंग है, लिम्फेटिक्स के थ्रू आपके साथ स्प्रेड होता है, रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है. फॉलिकुलर कैप्सूल को इन्वेट करता है, वेस्कुलर स्प्रेड है, सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस है. मेडुलरी कार्सिनोमा में कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है और मैन 1 और मैन 2 के साथ एसोसिएटेड है, पुअर प्रोग्नोसिस है. एनाफाइलेक्टिक कार्सिनोमा में वेरी पुअर प्रोग्नोसिस एंड इट इज़ हाईली अनडिफरेंशिएटेड. 56-year-old man with poorly controlled type 2 diabetes presents for dietary counseling. The nutritionist explains that some tissues such as brain and kidney and heart can utilize glucose independently of insulin. Which of the following transporter is responsible for insulin independent glucose uptake? insulin independent glucose uptake के लिए कौन सा है? that is GLUT4. I think that is GLUT1. sorry, that is GLUT1. तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टर है जो आपके साथ रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक? दैट इज़ GLUT1. फिर है 45-year-old woman undergoes allogenic bone marrow transplant. 3 weeks later he developed maculopapular rash over the trunk and extremities along with diarrhea and jaundice. Which of the following is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ है acute graft versus host disease. क्यों acute graft versus host disease है? क्योंकि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ आपके साथ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है, उसमें आपको मैकुलर पेपर रैश, जॉन्डिस, डायरिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली नज़र आएगी. हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर टिश्यू फ्रॉम अ पेशेंट विद हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया शोज हेपेटोसाइट्स containing clear cytoplasmic area where lipid droplets have been dissolved during tissue processing. तो ये आपके साथ स्टीएटोसिस को रिप्रेजेंट करता है. Newborn with hemolytic disease of newborn is found to have anemia, jaundice, positive Coombs test. Maternal antibody responsible for this condition is IgG. 9-year-old boy presents with recurrent episodes of hemoarthrosis, easy bruising. Maternal uncle has similar history.
लेबॉर्ट्री स्टडी पे प्रोलॉन्ग APTT नज़र आ रहा है एंड नॉर्मल PT। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस पैटर्न। हीमार्थ्रोसिस है, ईजी ब्रूजिंग है, मैटरनल अंकल को फैमिली हिस्ट्री भी है और प्रोलॉन्ग हेमोफीलिया है विच इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव आई गेस यस और विच इज़ एक्स लिंक रिसेसिव सॉरी। हेमोफीलिया आपके साथ है एक्स लिंक रिसेसिव। इसमें आपके साथ रेज्ड APTT होगा, ITP में रेज्ड BT, वॉन विली ब्रांड में BT और APTT दोनों ज़्यादा होंगे और DIC में सब कुछ ज़्यादा होगा। वुमेन विद बीटा थैलेसीमिया माइनर इज़ प्रेग्नेंट, हर हस्बैंड थैलेसीमिया स्टेटस इज़ अननोन, इफ ही इज़ लेटर फाउंड to also have beta thalassemia minor, what chances that their next child will have beta thalassemia major। तो बीटा थैलेसीमिया आपके साथ एक्स रिसेसिव है, ठीक है, तो इसमें आपके साथ सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसमें आपके साथ 25% चांसेस होंगे अगर हस्बैंड लेटर ऑन आपके साथ पॉजिटिव हो गया। 68-year-old woman presents with painless gross hematuria. Cystoscopy reveals papillary mass on the bladder wall. हिस्टोपैथोलॉजी पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कंफर्म हुआ है। तो इसका इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का? और ग्रॉस हेमेचूरिया जो है ब्लेडर भी इन्वॉल्व है उसमें। शिस्टोसोमा हेमाटोबियम शिस्टोसोमिएसिस कॉज करवाता है, तो इसका क्रॉनिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इस क्रॉनिक शिस्टोसोमिएसिस। ये पोर्टल हाइपरटेंशन शिस्टोसोमा मैंसूनी की वजह से होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन प्लस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर हेमाटोबियम की वजह से होता है। कोलिंजियो कार्सिनोमा क्लोनॉर के साइनेंसिस की वजह से। हाइड्रेटेड सिस्ट में एकाइनोकोकस, न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस में टीनिया सोलियम। अच्छा, 55-year-old man with long history of cigarette smoking develops chronic cough and weight loss. He is diagnosed with squamous cell carcinoma of the lung. Which of the following is the most likely carcinogen responsible for malignancy? तो ये आपके साथ है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बेंजीन एंथ्रासीन में स्किन कैंसर होगा, बेंजोपायरीन में लंग कैंसर होगा, एरोमेटिक अमाइन में एजोडाई होगा, नेफ्थलीन में ब्लैडर का कैंसर, नेचुरल प्लांट में एफ्लाटॉक्सिन वो लिवर कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड होता है। In a study on maternal mortality, it is found that a common cause of death in pregnant women is developing country is fulminant hepatitis failure due to viral infection। कौन सा वायरस इसमें इम्प्लिकेट हुआ है? दैट इज़ हेपेटाइटिस ई वायरस जो आपको प्रेग्नेंट वुमेन में मिलता है। अच्छा, 35-year-old मैन है, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स और वाटरी डायरिया है आफ्टर कंज्यूमिंग अनकुक्ड चिकन ड्यूरिंग समर कैंप इन एन एरिया विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 40 डिग्री। स्टूल कल्चर पे आपको कर्व्ड मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड नज़र आ रहा है, तो ये वो आपके साथ कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाए हो गया, ठीक है। लंग बायोप्सी स्पेसिमेन फ्रॉम इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट विद निमोनिया इज सस्टेन्ड, उसमें पास पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है और मैग्नेटा स्ट्रेन फंगल सेल वॉल है, ठीक है। तो पास पॉजिटिव आपको एक विपल में मिलता है, दूसरा इसमें मैग्नेटा स्ट्रेन फंगल सेल वॉल आपको कैंडिडा एल्बेकन में मिलता है, ठीक है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड भी है। Patient with ESRD presents with chest pain and pericardial friction rub। ईको पे आपको फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस नज़र आ रहा है, इसका अंडरलाइन कॉज क्या है? दैट इज़ यूरेमिया। 40-year-old मैन है, वो कंफ्यूज है आफ्टर बिंज ड्रिंकिंग, एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट लेवल है उसमें, अल्कोहल excessive alcohol metabolism increases the NADH and NAD plus ratio, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस इम्पेयर हुआ और इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हुआ। तो इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? दैट इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन ए। 46-year-old मैन है, ही प्रेजेंट्स विद स्किन फ्रेजिलिटी एंड ब्लिस्टरिंग on sun exposed area, urine collected during an episodes
is dark in color. Laboratory study shows decreased activity of uroporphyrinogen decarboxylase. तो ये आपके साथ क्या चीज़ हो गई? सन एक्सपोज्ड एरियाज़ है और ड्यूरिंग एपिसोड्स डार्क इन कलर है. दिस इज़ पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा. Porphyria cutaneous tarda. 28-year-old man being treated for latent tuberculosis developed peripheral neuropathy. Which vitamin supplementation should be given to prevent this complication? तो इसमें आप देते हो विटामिन B6 आप देते हो, ठीक है. पायरिडॉक्सिन जिसे कहते हैं. पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपने क्या देना है? B1 इज़ ग्रेटर देन B6 इज़ ग्रेटर देन B12. तो B1 एक्चुअली इसमें करेक्ट आता है, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्टिक न्यूराइटिस में B12 है, लेकिन पेरिफेरल न्यूराइटिस में ये आप करेक्ट कर लो, इसमें आपने B1 लिखना. A 55-year-old man with chronic GERD undergoes endoscopy. Biopsy of lower esophagus shows replacement of squamous epithelium by non-ciliated columnar epithelium with goblet cells. तो ये मेटाप्लेजिया हुई है बैरेट एसोफेगस में, आपको मिलता है इस टाइप का सिनेरियो. फिर है 48-year-old हैवी स्मोकर प्रेजेंट्स विद परसिस्टेंट हॉर्सनेस. लेरिंजोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे आपको कैरेटिनाइज्ड पैचेस ऑन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं. हिस्टोलॉजी पे आपको डिस्प्लास्टिक स्क्वेमस एपिथेलियम विद कैरेटिन फॉर्मेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइंग एपिथेलियम लीजन. तो अंडरलाइंग एपिथेलियल लीजन को स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है डिस्क्राइब कर रहा है. पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस that develops a cytotoxic T cell response. Which of the following antigen presenting molecule is responsible for presenting viral peptide to CD4 T lymphocyte. तो CD4 T lymphocyte को कौन प्रेजेंट करवाता है? That is your MHC class 1. अच्छा, 30-year-old woman is evaluated for infertility. Hormonal studies are ordered to assess her ovulatory function. Which of the following hormone is secreted by anterior pituitary and directly stimulates ovarian follicle development? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि आपके साथ it is evaluated for infertility. Secondly, इससे आपको ovulatory function का भी पता चलता है. दूसरी बात यह है कि ये आपके साथ एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है. दैट इज़ योर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें और लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है. सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा.